Assalamu alaikum, dear students. Lecture number 20, and in this lecture we are going to practice a numerical from end of the chapter 4.39 for Thevenin and Thevenin equivalent circuit. So मैं आपको दिखाता हूँ वो वाला न्यूमेरिकल. तो ये है 4.39. इसका हमें इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करना है at terminals A and B of the circuit shown in figure 4.106. That is, this is the figure number 4.106. अब इसको आपने यहाँ पे देखा है इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करना है. मैंने इसको यहाँ पे शो किया हुआ है. कहाँ पर वो मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स मी सी दैट ये रिकॉर्डिंग हो रही है. अच्छा, ये यहाँ से बंद कर दिया. ये पता नहीं क्या आ गया. अच्छा, तो ये वाला न्यूमेरिकल है और हमें इसका जो सॉल्व एग्जांपल है, सॉल्व प्रॉब्लम है, वो देखना है यहाँ पे. सो यहाँ पे इसकी सॉल्व एग्जाम है 4.39. ये इसका न्यूमेरिकल है. ये एग्जैक्टली यही न्यूमेरिकल है. यहाँ पे आपको VTH मालूम करना है, इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करना है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, अच्छा थोड़े से पिछला वाला डायग्राम ले लेते हैं. ये वाला 4.39 ये वाला सही, ये वाला हम ले लेते हैं. ये इसका न्यूमेरिकल है. अब हमने क्या करना है, डिसेबल पावर सप्लाई, सारे डिसेबल पावर सप्लाई होती है, इसको शॉर्ट कर दिया और इसको ओपन कर दिया. तो ये सर्किट बन गया, ये इक्विवेलेंट सर्किट. इसको इस AB से देखा तो हमें नज़र आया कि 10 + 10 है ये, और दिस इज़ इन पैरेलल विथ 5 और ये 16 सीरीज़ में है. तो ये आ जाएगा, ये 20 हो जाएगा. 20 × 5 पैरेलल का फार्मूला है. ये पैरेलल का फार्मूले से निकाल लिया इसको हमने 4, और 10 और 5 को 4 निकाल लिया. 10 और 5 पैरेलल में, 20 और 5 पैरेलल में, तो ये आ गया 4 + 16 दैट इज़ 20. अच्छा, इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग नोडल एनालिसिस. अब नोडल एनालिसिस में सॉल्व करने के लिए हमने इसको यहाँ पे V1 ले लिया है, ये V2 है और ये V3 है. सो V2 V1 जो है, यहाँ पर भी एक ये नोड है, ये रेफरेंस नोड ले लिया. दिस इज़ अ रेफरेंस नोड, और ये भी एक नोड है लेकिन इसका वोल्टेज 24 है. तो वी स्टार्ट फ्रॉम V1 अप्लाइंग नोडल एनालिसिस दैट इज़ KCL ऑन नोड 1. तो यहाँ पे हमने देखा कि द करंट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, तो माइनस आया, और करंट की डायरेक्शन, करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, V1 - 24/10. और फिर माइनस में अगेन ये करंट माइनस में, क्योंकि इट्स अगेन गोइंग अवे फ्रॉम द नोड, तो माइनस V1 - V2. नाउ यू लिसन माय ऑर्डर. It's an order that you please bring your copy and pencil and then start solving this numerical right now. Please understand, this is very useful and very necessary that you do it yourself. किसी की चीज़ देख करना कोई बंदा सीखता नहीं है. कभी कुछ सीखने के लिए करना होता है. when you do it you learn it. So too much of input, you will just keep watching the videos, that is too much of input, and then if there is too much of input and there is no output, that is equal to nothing. Nothing upon nothing is nothing. You understand? So करना शुरू करें इसको. अच्छा, V1 यहाँ पर है, V2 यहाँ पर है. इस वोल्टेज का क्रॉस कितना वोल्टेज होगा, V1 - V2. We always take current as tail minus head. This is tail of the arrow and this is head of the arrow. Always remember tail minus head. Either it is positive or negative, that will be dependent, that will depend on that the current is going away from the node or towards the node. So as this is going away from the node, so that's why we will be taking it V1 - V2, but the current magnitude is always V1 - V2. So V1 - V2 are negative, away from the node, divided by 10 resistance value, and this 3 ampere is a current which is coming towards the node. That's why I have just added it. You just do it and just bring this equation in this form, that is -54, and this name it equation number 1. Now you apply this nodal analysis KCL on this and V2 node 2, and there are 3 currents which are coming, V1 - V2/10, V2/5, and V2 - V3/16, and you just bring this in this form equal to, and this is the the equation. What is the third equation? Third equation is will be coming from here. There are 2 currents which are just coming, V2 - V3/16 and -3. So this is the equation, and just you try to bring it this form, and then put in these values, where in this thing V1 coefficient is 0. So you just please take care whenever you just entering these equations that V1 will be a quotient of a constant of 0, and there are 3 constants here, and here the one constant is missing, that is V3 is missing here, so you will be putting in
0 in the calculator. So these are the standard forms of equations. So you just put in and then you will just find out that these are the values. So VTH is minus 49.2 and this is matching with the end of the book answer, right? So now I will be just solving this same numerical using second method of using mesh analysis. So this is mesh analysis. There are two meshes here in practice, and this is going to be very easy, I guess, because this mesh is already known current is, because this current is minus I2 is minus 3, I2 is minus 3, this is I2 is minus 3. You just see that this mesh current is equal to this current source. So while applying mesh, we just see if there is a current source specific to that mesh, then the mesh current becomes that current, because the directions are opposite. This I2 is going from left to right, and this 3 ampere current is going from right to left. That's why this is I2 is minus 3. अच्छा, तो ये जो करंट है इसको हम लिखते हैं, ये माइनस 24 सप्लाई आ गई, इन सबको ऐड कर लिया 10 + 10 + 5, तो ये हो गया 25. ये क्या लिखा है मैंने 1, नो ये दिस कुछ भी नहीं है, ये लाइन कुछ भी नहीं है, दिस इज 25. अब 25 I1 और इसके साथ कॉमन करंट कौन सा गुजर रहा है, ये 10 के साथ ये जो ऊपर से गुजर रहा है I2, और I2 आपको मालूम क्या चीज़ है, I2 इज माइनस 3. जब हम इसको माइनस 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 30 हो जाएगा, बाकी क्वेश्चन की वही सूरत रहेगी. I1 चल गया, I1 आ गया माइनस 20, 0.24. इसको करके देखें आप. और फिर आपने VTH मालूम करना है. यहाँ पे आपको करंट पता चल गया है, I1 और I2 भी पता है, तो आपको ये VTH मालूम करना है. तो यहाँ पे आपको KVL अप्लाई करके VTH मालूम करना होगा. दैट इज वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस विल बी माइनस 5 I1. ये देखें माइनस 5 I1, फिर वहाँ पर से 16 की वैल्यू है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ये 16 की वैल्यू है, और I2 गुजर रहा है इसके अंदर से, और ये आ गया माइनस I2 बिकॉज अपोजिट में डायरेक्शन में जा रहे हैं. एंटर जहाँ से करंट एंटर होता है वो पॉजिटिव होता है, तो ये जो निकल रहा है करंट तो ये नेगेटिव है, और फिर VTH वैल्यू आ गई है पॉजिटिव के साथ. सो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, I2 की वैल्यू पुट की माइनस 3, I2 की वैल्यू, VTH 49.2 एंड माइनस. तो ये वाला न्यूमेरिकल हम इस तरीके से सॉल्व कर लिया हमने, और नॉट थेवेनियन का ये न्यूमेरिकल था, और डिपेंडेंट सोर्सेज के साथ हम न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं. और अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम बाकी है, हम जो है इसको यहाँ पे एंड नहीं कर सकते हैं. सो वी जस्ट गो बैक and then we just start discussing Norton theorem. Norton theorem. अच्छा, Norton theorem. मैं इसका आपको न्यूमेरिकल असाइनमेंट ऐड करूँगा, और अभी मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे टाइम मिल जाए अपलोड करने के बाद. तो मैं आपका असाइनमेंट की डेट भी एक्सटेंड कर रहा हूँ मंडे, और मंडे के बाद हमारा क्विज़ भी है मंडे को. तो मंडे को जो जिनको पीरियड होगा उनका मंडे को, जिनका पीरियड नहीं होगा उनको उसके कॉरस्पॉन्डिंग डे टाइम टेबल के हिसाब से हम इसको मेंटेन करेंगे क्विज़ को. तो अच्छा, नॉर्टन थ्योरम. अब देखिए, नॉर्टन थ्योरम ये कहता है कि अ सर्किट कैन बी रिप्लेस विद अ करंट सोर्स इन पैरेलल विद अ रेजिस्टर. अब अगर इसको सोर्स ट्रांसफॉर्म करें ना, तो ये एग्जैक्टली थेवेनियन इक्विवेलेंट के बराबर बन जाता है. तो अच्छा, RN जो होगी ना RTH की तरह, RN इज इक्वल टू RTH, बिल्कुल वही प्रोसीजर है और वही वैल्यू है, सेम सारी पावर. नॉर्टन थ्योरम की अगर स्टेटमेंट पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं. नॉर्टन थ्योरम स्टेट्स that a linear two-terminal circuit can be replaced by an equivalent circuit consisting of a current source IN in parallel with a resistor RN, where IN is the short circuit current. अब ये जो है ना बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सर्किट करंट. वहाँ पे जो वोल्टेज था ना VTH में, थेवेनियन में VTH था, वो ओपन सर्किट वोल्टेज था. ये करंट जो होगा ये शॉर्ट सर्किट करंट होगा. इसका मतलब है कि जब आपने मालूम करना होगा नॉर्टन इक्विवेलेंट फॉर टर्मिनल A एंड B, तो व्हाट यू विल बी डूइंग इज यू विल जस्ट मेक इट शॉर्ट. आप यहाँ पे तार लगा देंगे, एक लाइन खींच देंगे. दैट्स हाउ यू विल जस्ट सॉल्व द सर्किट फॉर नॉट इक्विवेलेंट, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द करंट IN इन दिस शॉर्टेड पाथ. तो ये वाला चीज़ है, इसको हम करेंगे, और फिर रेजिस्टेंस इस तरीके से मालूम करेंगे. लेट्स गो टू प्रैक्टिस. और IN इज़ द आई शॉर्ट सर्किट करंट. अब ये जो है ना बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं, और आज फ्राइडे है, सो वी विल जस्ट कीप अ क्लास ऑनलाइन सेशन ऑन मंडे, एंड देन वी जस्ट कैन गो फॉर फर्दर फॉर द क्विज. ऐसा कर लेंगे, सही है, ताकि आपको अगर कोई इशू हो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी हो जाए. आप सवाल करें ना करें, दैट इज़ अप टू यू, बट आई विल बी जस्ट गिविंग यू ऑनलाइन लेक्चर. देखें, ऑनलाइन टीचिंग जो है ना नॉर्मल टीचिंग से बड़ी मुश्किल है. ऑनलाइन टीचिंग के लिए बड़ी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पहले से हर चीज़ बना के रखनी पड़ती है. और कन्वेंशनल टीचिंग में हम आते हैं, बोर्ड पे जो कुछ करना होता है करके चले जाते हैं, इधर हमें काम करना पड़ता है ज़्यादा. सो प्लीज़
अंडरस्टैंड। अच्छा, एग्जांपल 4.11 है और ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना एक सॉल्व एग्जांपल है और इसके अंदर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, आप देख के कर सकते हैं। मैं ये वाले प्रॉब्लम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.11 आपको कराना चाहता हूँ। शायद मेरे पास सॉल्व एग्जांपल में ये 4.11 है या नहीं है, देखना पड़ेगा कि क्या है मेरे पास। हाँ, ये रहा 4.11, ये रहा 4.11, मैंने कल इसको सॉल्व किया है और ये एग्जैक्टली बिल्कुल वही वाली एग्जांपल है। देखें, ये भी 4 एम्पेयर की करंट सोर्स है और ये भी 4 एम्पेयर की करंट सोर्स है। ए और बी पे आपको मालूम करना है। हम क्या करेंगे, इसको शॉर्ट कर देंगे, लेकिन पहले हमें RTH मालूम करनी है, जो कि बराबर होगी RN के, नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट के। तो ये देखें, ये इसको डिसेबल कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया, ये 3 + 3 हो गई और ये पैरेलल में है, तो 3 + 3 दैट इज 6 एंड पैरेलल विद 6 इज 3 ohms। RTH मालूम चल गई। अब शॉर्ट सर्किट टर्मिनल हम क्या करेंगे, इन दो टर्मिनल्स को ए और बी को शॉर्ट कर देंगे। अब देखें, जैसे मैंने तो कह दिया ना शॉर्ट कर देंगे, लेकिन आपको ये तो मेरे लिए बहुत ही एक ऐसी नॉर्मल सी चीज़ है जिसको मैं कई बार कर चुका हूँ। कितनी बार मैंने ये कोर्स पढ़ाया होगा और हर दफ़ा मैं कोर्स में पढ़ाने से पहले किताब ज़रूर पढ़ता हूँ, तो आप लोगों को भी तो किताब पढ़नी पड़ेगी ना। मैंने स्टेटमेंट दे दी शॉर्ट कर देंगे, लेकिन इतनी आसानी तो समझ में नहीं आएगा कि शॉर्ट करने का क्या मतलब है। शॉर्ट करने का मतलब यह है कि ए और बी जहाँ पे आपने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट मालूम करना है, वहाँ पे उधर से इसको तार को जोड़ देंगे और यहाँ से जो करंट गुजरा होगा वो आपकी करंट सोर्स बनेगी IN। चलें, अल्लाह आसान करे इस काम को। तो 6 ओम रेजिस्टेंस जो है ये शॉर्ट हो गई है। ये देखें, ये शॉर्टेड पास है, ये तो इसका मतलब कि ये रिमूव हो गई। शॉर्ट पास, इसमें से कोई करंट नहीं गुजरेगा। ये बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, यू प्लस ट्राइज टू अंडरस्टैंड इट, कि ये तार खींच दिया तो ये रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं गुजरेगा, ये सर्किट से आउट हो गई है। दैट मीन्स इट्स जस्ट नॉट देयर, शॉर्ट सर्किट हो गया यहाँ से। सही है, तो ये रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो गई है। ये आपका नॉर्मल सा है। यहाँ पे करंट कैसे करेंगे, 6 ohm resistance is short circuited, it has no effect। now applying KCL on V1, ये KCL अप्लाई कर दिया, ये वोल्टेज आपका नोन है, दैट इज 15 वोल्ट। डायरेक्शन मैंने करंट की टुवर्ड्स द नोड ली है, इसलिए 15 - V1/3 और एक करंट आ रहा है 4 एम्पियर टुवर्ड्स द नोड और आ रहा है V1 - 3। ये वाला यहाँ से करंट जो आ रहा है वही IN बनेगा, V1/3। तो ये मान कर लिया, V1 की वैल्यू पता चल गई 13.5। तो V1 की वैल्यू पता चल गई 13.5, तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, IN की वैल्यू होगी V1/3, क्योंकि यहाँ से ये जो है ये करंट यहाँ पे V1/3, तो IN हो गया 4.5। सो दिस इज एग्जैक्टली मैचिंग द आंसर, दैट इज 4.5 और 3 ohms हमने RN मालूम की थी, जो कि RTH के बराबर होती है। अब जो अगला सवाल है इसका वो भी मेरे पास सॉल्व है और ये मैंने कर लिया था, ये नॉर्टन का, ये 4.11 है और ये मैंने 4.39 मुझे सॉल्व करना है। मुझे देखना पड़ेगा क्या किया था। 4.11 था मेरे पास और 4.39 है। 4.39 को देख लेते हैं। 4.39, ये 4.39 है, सही। ओह, ये तो कुछ और ही लग रहा है। 4.39 तो नॉर्टन, अच्छा ये तो थेवेनिन का था। अच्छा, तो ये तो कर लिया मैंने। और 4.51 को देख लेते हैं। 4.51, ये 4.51 है, एंड ऑफ द चैप्टर है। ये मुझे आपको दिखाना पड़ेगा पहले। 4.51 एंड ऑफ द चैप्टर में से क्लास को 20 मिनट की रखनी है, बिकॉज 20 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्लास को वीडियो लेक्चर को देखना मेरे ख्याल में आसान काम नहीं है। 4.51 कैसे दिखाऊं मैं आपको। 4.51 ये आ गया 4.51। ओ यस, देखिए यो टाइम लग रहा है, सॉरी भाई। 4.51 वगैरह क्या करना है, ये करना है कि ए बी पर नॉर्टन मालूम करना है और सी डी पे भी मालूम करना है। मैंने सी डी पे मालूम नहीं किया, सी डी आप मालूम कर लीजिएगा। मैं ए डी पे मालूम किया, इसका आंसर गिवन है, क्योंकि ये इवन ऑड नंबर का क्वेश्चन है, इसका आंसर मौजूद है। ए का पार्ट मैंने आंसर देखा हुआ है, मैच कर लिया है मैंने अपने सोल्यूशन से। तो ए बी के ऊपर मालूम करना है। ये ए बी टर्मिनल्स है मेरे, ए बी टर्मिनल्स, इसको मैंने रेजिस्टेंस ए बी टर्मिनल को बाहर निकाल दिया, इसको डिसेबल करने के लिए ओपन कर दिया, इसको शॉर्ट कर दिया और रेजिस्टेंस मालूम की। तो आप ज़रा इसको अपने आप को कन्विंस करें क्या हो रहा है कि 6 और 6 and 3 आर इन पैरेलल एंड देन दे आर इन जस्ट सीरीज विद 2 और फिर दे आर इन पैरेलल विद 4 ohms रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये रेजिस्टेंस आ गई है RTH और RN। 2 ohms आ गई है इन दो टर्मिनल्स पे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 2 ohms। नाउ शॉर्ट सर्किटिंग द टर्मिनल्स, इन टर्मिनल्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो ये जो ये रेजिस्टेंस होगी ये बाईपास हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पर नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस हटा दी यहाँ पे। अब ये वाला करंट मालूम करना है और इस वाले करंट को मालूम करने के लिए ये जो है प्रोसीजर मैंने मालूम किया है। आई गेस कि मैंने इसको V1 से सॉल्व किया, दैट इज़
नोडल से सॉल्व किया है मैंने, V1 इसको दे दिया है, एक नोड है इसमें, कंप्लीट एक ही नोड है ये, और ये नॉन वोल्टेज है 120, तो करंट की डायरेक्शन मैंने दे दी है ये टुवर्ड्स है 120 माइनस V1 अपॉन 6, ये रहा 120 माइनस V1 अपॉन 6, और फिर है V1 अपॉन 3, ये रहा V1 अपॉन 3, ये रहा V1 अपॉन 3, और ये वाला वोल्टेज है करंट है IN V1 अपॉन 2, V1 अपॉन 2 आ गया IN, और ये 6 प्लस हो रहा है, तो ये इक्वेशन हो गई। और इसको जो है सॉल्व किया तो ये V1 आ गया आपके पास 26। IN मालूम करने के लिए आपको मालूम करना पड़ेगा कि IN की वैल्यू क्या है। तो ये जो करंट है ना, ये करंट यहाँ से IN मालूम करना है, तो इधर दो करंट आ रहे हैं, एक यहाँ से जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, तो इसको हमने KCL अप्लाई किया, तो IN टुवर्ड्स द नोड, दिस नोड IN +6, ये +6 और ये माइनस V1 अपॉन 2, तो ये IN को जो है इक्वल टू 0 कर दिया, तो यहाँ पे IN को बाहर निकाल के ले आया दूसरी इक्वेशन की दूसरी डायरेक्शन में, और ये हो गया इसको देखें, इसको क्या किया, इक्वल टू की डायरेक्शन में इस तरफ लाया, तो ये प्लस ही रहा, और ये प्लस, देखें सही है, IN को उधर ले गया तो माइनस होना चाहिए था, लेकिन इधर प्लस कर दिया है, तो ये प्लस और ये माइनस कर दिया, ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, ये माइनस प्लस नहीं है, ऊपर का डॉट नज़र आ रहा है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये आ गया आपके पास 7, 7 आ गया, ये माइनस है ये, तो आंसर इज़ 7, और ये मैच कर रहा है आपके आंसर से फ्रॉम द बुक। अब जो मुझे करना है, इसी सवाल को सॉल्व करना है 4.51 को, नहीं मैंने किसी और तरीके से सॉल्व नहीं किया, इसका मतलब दैट्स इट, और आंसर इज़ मैचिंग विद द बुक आंसर। बुक आंसर कितना था लिखा नहीं लिखा, एनीवे बुक आंसर इज जस्ट दिस 7 एम्पियर दैट आई हैव कंफर्म्ड, और RTH वैल्यू भी आ गई है। तो ये नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब आपने मजीद प्रैक्टिस असाइनमेंट में करनी है, जो मैं आपको असाइनमेंट देने लगा हूँ इसके बाद वाला, और इसी का एक क्विज भी होगा आपका नॉर्टन और थेवेनिन का, और अगले टॉपिक का। अब जो हम अगला टॉपिक कवर करेंगे वो हम करेंगे, छोटा सा टॉपिक है, बट दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम चैप्टर नंबर 4, और आज नहीं कर रहे वो, हम अगले सेशन में करेंगे, लेकिन मैं तो चाह रहा हूँ कि आज ही कर लेता। फॉर दैट आई विल हैव टू सी दैट हाउ मच टाइम आई एम लेफ्ट विथ, डेरिवेशन नहीं करनी है, और ये सवाल है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है, बट दिस यू विल हैव टू अंडरस्टैंड इन अ बिट डिटेल, so we will have a complete separate lecture for it, but maximum power transfer की मैं स्टेटमेंट आपको बता दूँ, मैं बता दूँ आपको कि अगर इस सारे सर्किट से उल्टे हाथ से और इस RL के अंदर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करनी हो, तो वी विल हैव टू हैव दिस RTH इक्वल टू सीरीज रेजिस्टेंस RL, राइट। तो होप यू दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। तक 20 मिनट हो गए, हम इसका एंड अप करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।